Okay, today we have to do Dirac measure. Okay, example of a measure which we call the Dirac measure. Dirac measure. Dirac फंक्शन के बारे में आपने सुना होगा, मे बी शायद आपने फिजिक्स में किया होगा ये, आई थिंक सो. है कुछ आइडिया? एनी आइडिया? It's a strange function actually. This function is called actually generalized function. It's defined on real line, which is 0 at each point except at 0. Except at 0, okay? इसका वैल्यू हर किसी रियल लाइन पर जो भी पॉइंट है ना, it vanishes, okay? It vanishes throughout this axis except at 0, and at this 0 its value is infinity. Its value is infinity, okay? This is at 0 its value is infinity. So we can define this function actually, yeah? Which is 0 at every point except at 0, and at 0 its value is infinity. But it has one more property that's very interesting. The integral over whole real line is 1. That's very interesting. जो नेचुरल फंक्शंस है ना, उनकी प्रॉपर्टी नहीं है जो नेचुरल फंक्शन, बिकॉज इट इज थ्रू आउट 0. इफ यू सी द एरिया under this curve, actually it's just this line, this whole y-axis, so it should be equal to 0. But its definition, it's actually the definition of this function. It's in the definition. This is the second property of this function, and this one is the first property. It's 0. The first property is f of x is 0 for each x except x not equal to 0, for each x not equal to 0, and it is value at 0 is equal to infinity. So that means the whole value of the function is actually at 0. It's like that, and the area of this function is actually 1, and we can prove its existence actually through limit process. That's not our topic actually, but I want to say that in this Dirac function the whole value is evaluated at a point actually. So everything is at this point actually. For the rest of the points its value is 0, it vanishes. Now let's come to this Dirac measure. So this function is very interesting. It's a generalized function, so it does not behave natural actually. Its behavior is not natural actually. You can see it's 0 at every point except at x equal to 0, where the value is at the point 0, its value is infinity. And the second property, which is very interesting, this integral is equal to 1. So let's come to our main topic. Now we do Dirac measure. What's Dirac measure? Let's take a non-empty set. Let's take this x, which is non-empty. अपना वीडियो ऑन रखिए. X is non-empty, and our S, ये जो मैं लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ ना, आप इसको देख रहे हो ना अपलोड के बाद, आपका वीडियो नहीं आ रहा इसमें. आपने देखा? आपका वीडियो लेक्चर में आ रहा है? नहीं, स्टार्टिंग में आता है. स्टार्टिंग में एक्चुअली वहाँ जब मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ ना उस टाइम मतलब आ जाएगा. बट अगर आप जो लेक्चर सब आप देखोगे, आपका वीडियो नहीं आ जाएगा लेक्चर्स में, क्योंकि हाँ वीडियो आ सकता है अगर मैं जो मैं बोर्ड यूज़ कर रहा हूँ ना, अगर वो जूम का बोर्ड होगा,
क्योंकि जूम का एक अपना इनबिल्ड बोर्ड है, उससे भी हम लेक्चर्स बना सकते हैं उससे। बट उसमें प्रॉब्लम ये होगी कि शायद आपका जो वीडियो है ना वो शायद आ जाएगा लेक्चर में जब आप इसको यूट्यूब में देखोगे। बट हियर इट्स सेफ बिकॉज आई एम यूजिंग द डिफरेंट सॉफ्टवेयर, तो आपका वीडियो इसमें नहीं आ जाएगा। सो लेट्स टेक x टू बी नॉन एम्प्टी सेट एंड s इक्वल टू px, और अगर आ भी जाएगा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वीडियो आ भी जाएगा ना, नो प्रॉब्लम है। जी सर। Let x to be non-empty set and s equal to the power set of x. Now let's fix element. जैसे मैंने कहा डिराक फंक्शन में x equal to 0 एक्चुअली फिक्स होता है और उसी पर सारा वैल्यू होता है और उस पर इन्फिनिटी इसका वैल्यू होता है? तो यहाँ पर भी हम फिक्स करेंगे पॉइंट, और इसी पॉइंट पर एक्चुअली डिपेंड है इस मेजर। तो फिक्स a point a in x, fix a point a in x, let's fix this point and define a function, set function mu from power set of x to 0 to infinity by, let's define this by mu of a is equal to 0 if this particular point is not in A, and if it is in A its value is 1. तो ऐसे आप बहुत सारे फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हो। यू कैन डिफाइन द नंबर ऑफ सच फंक्शंस इज ऑब्वियसली इक्वल टू द कोऑर्डिनेट ऑफ x, बिकॉज आपने a x में लिया, इस पर ही फंक्शन डिपेंड है एक्चुअली, इसी a पर। सपोज x में 3 पॉइंट्स है, सी 1 2 3, तो 1 के लिए आप फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं म्यू ऑफ a इक्वल टू 0 इफ 1 इज नॉट इन a एंड म्यू ऑफ a इक्वल टू 1 इफ 1 इज इन a। दूसरा पॉइंट अगर 2 है इसमें, तो 2 पर भी आप 2 पर भी एक फंक्शन डिफाइन होगी, डिराक फंक्शन विच इज म्यू ऑफ a इक्वल टू 0 if 2 is not a and mu of a equal to 1 if 2 is in a. So you can define those number of functions. It depends upon the cardinality of cardinality of the set x actually. But all of them have same nature actually. Yeah? All of them. So this mu of a is 0 if a is not in a, and mu of a is 1 if a is in a. We see that this mu, it is a major. This mu is a major. रोल नंबर 1 है यहाँ पर, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, 3, 4, 3 नहीं है कोई, 4, 4 भी नहीं है सर। 5, 6, 7, 8, 8 कौन है? अच्छा रोल नंबर 7 है। अच्छा आप मुझे बताइए, जो पहली प्रॉपर्टी है दिस म्यू ऑफ द एम्प्टी सेट इज इक्वल टू 0, ये कैसे आ जाएगी दिस प्रॉपर्टी? और आपके पास डेफिनेशन, हाँ यस सर पहले हमने दिखाई ना, मतलब पहले हमने डायरेक्ट मेजर जो बताया वो हमने बताया f ऑफ x इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 0। f ऑफ 0 पे इनफिनिटी होगा, बाकी सारों पे 0। नहीं, वो डिराक फंक्शन है अलग, डिराक मेजर की हम बात करेंगे। जो फंक्शन हमने डिफाइन की है म्यू ऑफ a इज अ सबसेट ऑफ x, म्यू ऑफ a इज 0 इफ a इज नॉट इन a, एंड म्यू ऑफ a इज 1 इफ a इज, ये एक्चुअली इस पॉइंट पर डिपेंड करता है। अगर पॉइंट सेट में है तो इसका म्यू वैल्यू 0 नहीं, इसका म्यू वैल्यू 1 होगा। अगर ये पॉइंट सेट में नहीं है, इस पर्टिकुलर सेट में नहीं है जिसका आप म्यू वैल्यू निकाल रहे हो, अगर ये पॉइंट इसमें नहीं है तब उस केस में इसका वैल्यू 0 है। ओके अब मुझे आप बताइए म्यू ऑफ द एम्प्टी सेट किसके बराबर आ जाएगा? 0 के सर x इज नॉट इक्वल टू 5 हमने देखा, तो मतलब म्यू ऑफ
ए मतलब ये मतलब एम्प्टी सेट एक्स को नहीं बिलोंग करता, तो ये 0 के बराबर मगर ए आप ये बताओ ना, ए इसमें नहीं है सिंस A is not in the empty set because it does not contain any point, so therefore its mu value is equal to 0. 0. Okay. Good. Now second property, let's take a disjoint sequence. Let an be a disjoint sequence in power stop x, because this is our semi-ring. We need to show that the mu value of the disjoint sequence, disjoint union, is equal to summation n runs from 1 to infinity mu of a. ओके, रोल नंबर 8 मुझे बताए हम इसको स्टार्ट कैसे करें, हाउ टू प्रोसीड. रोल नंबर 8 है. हाँ, नो सर. रोल नंबर 9, 10. मुझे लग रहा है मैं इनको नोट करके रख देता हूँ रोल नंबर्स को. तो अब तक सिर्फ 7 आया है. 10, 11, 12. यस सर. 11. 11 is here. ओके. ये बाकी लोग ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे क्लास? नहीं सर, इनको हम बोलते हैं रिस्पॉन्स नहीं है वहाँ से. ओके, चलो इनको फिर आगे समझ आ जाएगा. ओके, दिस वी नीड टू शो दैट रोल नंबर 11 है. अब आपको प्रूव करना Yes, है sir. म्यू ऑफ डिसजॉइंट यूनियन इज इक्वल टू समेशन n रन्स फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी म्यू ऑफ n. कैसे आप स्टार्ट करोगे प्रूफ? बस मुझे मतलब आइडिया चाहिए मुझे आपका एक्चुअली. मतलब ये रट्टा नहीं लेना आपको, सिर्फ मतलब आप स्टार्ट कैसे करोगे प्रूफ को, वो इम्पोर्टेंट है. फिर आगे जो स्टेप्स है ना वो खुद ही आते हैं. यस सीक्वेंस लेंगे. यस. डरने के बगैर आप अगर गलत भी कहोगे ना, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा. हमने सीक्वेंस लेनी है पहले, डिसजॉइंट सीक्वेंस. ओके, वो हमने ली है. फिर हमें ये वेरीफाई करना है, ठीक है. दिस इक्वालिटी, ये जो म्यू मेजर है ना, ये किस पर डिपेंड है एक्चुअली? इट डिपेंड्स ऑन द पॉइंट ए, है ना. ए पॉइंट पर डिपेंड है. वो जो स्मॉल लेटर हमने लिया ना ए, उस पर डिपेंड है. वेदर दिस ए बिलोंग्स टू यूनियन और नॉट, ये उसी पर डिपेंड है. इसका आपको ख्याल रखना है. तो ओबियसली यहाँ से मुझे ये आइडिया मिल रहा है कि मैं 2 केसेस लूँ. कितने केसेस? तो एक केस में ये ले लूँ, उसमें मैं मान लूँ ये जो स्मॉल लेटर ए है इट इज इन द यूनियन, ठीक है. और सेकंड केस में ये लूँ, सपोज दैट लेटर दैट ए इज नॉट इन द यूनियन. ओके, आपको समझ आ रहा? यस सर. ओके. तो फर्स्ट केस जब आप मानोगे कि ए यूनियन में है, ए यूनियन में है, देन व्हाट विल बी द म्यू वैल्यू ऑफ दिस यूनियन? ए इस सेट में है, वो 1 आएगा. ये वो ऑब्वियसली वो होना चाहिए. और आपको प्रूव करना ये सम भी 1 के बराबर आना चाहिए. अब चूंकि ए किस में है? यूनियन में. इसका मतलब है कि ए किसी न किसी ए एन में तो होगा. फिर ए मस्ट बी इन सर्टेन ए एन, क्योंकि यूनियन में है ना. यूनियन का मतलब है कि किसी Yes, एक sir. में, कम से कम एक में होगा. 2 में भी हो सकता है, 3 सेट्स में भी हो सकता है. बट हियर द सीक्वेंस इज डिसजॉइंट. तो वो जो ए होगा जो कि इस यूनियन में है, वो कितने ए एन में हो सकता है? एक ही में होगा. अगर यूनियन में होगा तो कम से कम एक में होगा. एक से ज्यादा एक सेट्स में में भी हो होगा. सकता है, मगर यहाँ पर एक से ज्यादा सेट्स में नहीं हो सकता. रीजन क्या है? बिकॉज द सीक्वेंस इज डिसजॉइंट. सो दैट मीन्स ये एक ही एग्जैक्टली एक ए एन में होगा. तो वहां पर जो इसका वैल्यू होगा वो 1 होगा. जो रेस्ट जो है ना, वो सारे क्या Zero. होंगे? वो सारे 0 होंगे. तो दैट मीन इट इज 0 प्लस सिर्फ एक ही टर्म 1 आ जाएगी, बाकी सारे 0s आ जाएंगे. सो
So that sum is equal to 1. So ये भी 1 आ गया, ये भी 1 आ गया. Okay, let's I will do this case now first. I will write this case first. Case 1. If A is not in the union an runs from 1 to infinity. Sorry, if A is in the union, A is in the union, A अगर union में होगा, so then there exists then this line with dot, इसका मतलब है कि यूनिक. अगर विदाउट दिस लाइन होगा ना, इट्स मीन देयर एग्जिस्ट का मतलब है कि कम से कम एक है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है. तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट यूनिक, मगर एक, इसका मतलब एक ही एग्जिस्ट होगा, एग्जैक्टली 1. देयर एग्जिस्ट यूनिक के ग्रेटर और इक्वल टू 1 such that this A belongs to A K. Is that clear? सिर्फ एक ही A K में होगा. So therefore this summation n runs from 1 to infinity mu of an, it's equal to, अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा ना, इट्स लाइक दिस म्यू ऑफ a1 प्लस बीच में किसी जगह म्यू ऑफ a k होगा, कोई टर्म केथ, और यहाँ से सारी, तो ये सारा ज़ीरो आ जाएगा, 0 प्लस, तो यहाँ पर सिर्फ 1 होगा, प्लस यहाँ पर बाकी टर्म सारी 0 होगी, प्लस 0 प्लस. So this is equal to 1. So this series is 1. Also the union is also 1 because A is in the union. So thus we have this mu of union an runs from 1 to infinity is equal to the summation n runs from 1 to infinity mu of an. ये केस क्लियर हो गया आपको, दिस केस? हाँ सर. Now let's do the second case. मैं नेक्स्ट पेज पर आ जाऊं. हाँ सर. केस सेकंड हम क्या लेंगे? रोल नंबर 12, 13, रोल नंबर 13 नहीं है शाम? सर 30 नहीं है. 14 14 भी नहीं है सर. 15 है सर. ओके 15. जी सर. हाँ जी 15 रोल नंबर. आप मुझे बताएं सेकंड केस हम क्या लेंगे? सर हम इसको सेकंड केस लेने से बस हमने पॉइंट ए लिया है सर, मतलब उसकी यूनियन में बिलोंग नहीं करेगा. यूनियन में बिलोंग नहीं करेगा. ओके, सो इज नॉट इन द यूनियन. एंड रन्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी. ए अगर यूनियन में नहीं होगा देन सर मतलब अगर हम इसका जब यूनियन में सर अगर ये नहीं बिलोंग करेगा सर, जब उसको म्यू के साथ सर इसका यूनियन लेंगे तो सर वो सर हमें 0 के बराबर आएगा ना फिर. हाँ, म्यू वैल्यू देन दिस, जी सर. then this mu of union an and runs from 1 to infinity is equal to, सर मतलब वो u आएगा ना, क्योंकि ये इसमें अगर बिलोंग नहीं करेगा, मतलब तो इसका म्यू वैल्यू क्या आ जाएगा? डिराक मैट्रिक्स सर जो प्रॉपर्टीज पढ़ी तो वो 0 के बराबर आएगा ना. म्यू वैल्यू 0 आ जाएगा. तो सीरीज अब आपको चेक करनी, सीरीज क्या आ जाएगी? इसको सीरीज हमें यही आएगा, मतलब अगर हमने ये जो म्यू वैल्यू लिया सर यूनियन इसका सर वो हमें आ जाएगा, मतलब जो समेशन सर का म्यू ऑफ सर ए एन सर उसी के बराबर आएगा. देखिए ए यूनियन में नहीं है, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? सर मतलब
किसी में भी नहीं। हाँ सर, मतलब वो ए एन में बिलोंग ही नहीं कर रहा किसी में भी। किसी में भी नहीं है ये। ओके, जी सर। since A is not in union an runs from 1 to infinity, so therefore A is not in, yes, ए एन में मतलब वो बिलोंग ही नहीं करेगा। किस an में नहीं करेगा बिलोंग? जी सर। किस an में? एक an में या दो an में या किसी भी an में नहीं करेगा बिलोंग? सर मतलब किसी में भी नहीं करेगा ये बिलोंग। किसी में भी नहीं, for all n greater or equal to 1. So then summation mu n runs from 1 to infinity, ये किसके बराबर आ जाएगा? सर हमें ये आ जाएगा। जी सर। yes, सर हमें आ जाएगा जो मतलब हमने ये म्यू सर जो हमने ऊपर ये 0 है। म्यू सर ये मतलब 0 के बराबर आएगा, लेकिन सर हमने वो ऊपर लिया ना जो हमने मतलब म्यू यूनियन एंड रनिंग फ्रॉम 1 to n से ही मतलब उसके बराबर आएगा। फिर अगर हमें मतलब ये देखिए हमें यूनियन का वैल्यू तो 0 आ गया, हमें क्या चाहिए अब? जी सर फिर ये हाँ ये बताइए किसके बराबर जाएगा? सर ये 0 के बराबर ही आएगा हाँ ना? क्यों आ जाएगा 0 के बराबर? वही मैं बता रहा हूँ। सर क्योंकि हमने जो ऊपर म्यू यूनियन से ये ए एन ये सर ये हमें 0 के बराबर है ना। हम्म, नहीं आप गलत कह रहे हो, आप अच्छी तरह से कहो ना इसको, आराम से, इत्मीनान से। हाँ बताइए। सर क्योंकि यहाँ पे तो यहाँ पे क्योंकि जो हमने मतलब सारे जो ए एन सर हमने 0 लिए ना यहाँ पे। नहीं सारे एयर्स नहीं लिए, 0 कहाँ लिए सारे? सॉरी सर, ये कुछ दो स्टूडेंट्स का डिस्कनेक्ट हो गया, बोल रहे हैं अलाउ करने के लिए। ओके मैंने किया इनको शायद। लो देखिए ए किसी भी ए एन में नहीं है। रोल नंबर 15 है आपका? जी सर। ओके, ए किसी भी ए एन में नहीं है, ठीक है? जी जी। ए अगर ए एन में नहीं होगा, इसका म्यू वैल्यू क्या होगा? 0 के बराबर। 0 के बराबर। तो म्यू वैल्यू ऑफ ईच ए एन इज 0 है ना? हर किसी म्यू ऑफ A1 भी 0 है, म्यू ऑफ A2 भी 0 है। आपको समझ आ रहा है ये? जी जी सर मुझे ओके आ रहा है। तो सारा 0 आ रहा है ना? इट मीन इट्स इक्वल टू 0 + 0 + 0, so it is series 0 actually, where n runs from 1 to infinity. It is 0 + 0 + 0 infinite series है with each term equal to 0, that's equal to 0. अच्छा ये 0 + 0 + 0 ये कैसे 0 के बराबर है? फाइनाइट सम तो है ही 0 है ना? सो ये मैं नेक्स्ट पेज पर आ जाऊं? हाँ सर। ओके सर ये थोड़ा सा रिपीट कीजिए। ओके कहाँ से? सेकंड केस? हाँ सर मैं डिस्कनेक्ट हुआ इसलिए। ओके ओके, तो सेकंड केस हमने लिया अगर ए यूनियन में नहीं होगा, यूनियन ए रनस फ्रॉम 1 to infinity an, इसमें नहीं होगा ए, इसमें ए नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि इसका म्यू वैल्यू क्या होगा फिर? 0। ठीक, अब एक्चुअली हमें चाहिए म्यू ऑफ यूनियन इज इक्वल टू द सीरीज। अब उस सीरीज का वैल्यू भी हमें 0 ही चाहिए क्योंकि यूनियन का वैल्यू 0 आ गया। ठीक, तो वो सीरीज देखना, सीरीज उसके लिए हमें देखना कि ए पर अब क्या कंडीशन होगी। ए यूनियन में नहीं है, ये हमें क्या देगा, इससे हमें क्या मिलेगा ए अगर यूनियन में नहीं है। सो वो मैंने नीचे लिख दिया, सिंस ए इज नॉट इन द यूनियन सो देयरफॉर ए इज नॉट इन एनी एन, ए किसी भी एन में नहीं होगा। ओके, ए अगर किसी भी एन में नहीं है, ए अगर किसी भी एन में नहीं है तो इसका मतलब है कि हर किसी एन का जो म्यू वैल्यू है वो 0 के बराबर है, क्योंकि ये डेफिनेशन है म्यू की, म्यू ऑफ अ सेट इक्वल टू 0 अगर ए उस सेट में नहीं है। अब क्योंकि ए किसी भी एन में नहीं है, किसी भी सेट एन में नहीं है, इसका मतलब है कि हर किसी
सेट का म्यू वैल्यू 0 है. सो म्यू ऑफ A1 is 0, म्यू ऑफ A2 is 0, म्यू ऑफ all it's 0 plus 0 plus 0, so that's equal to 0. ओके सर. ओके. सो अब मैं नेक्स्ट पेज पर आ जाऊँगा. अब यहाँ पर जो मैंने यूज़ किया ना कि ये भी एक्चुअली सिंपल है, बट मुझे नहीं लग रहा कि आपने इस पर कभी गौर किया होगा. 0 प्लस 0, अगर ये सपोज फाइनाइट जीरोस होगी ना, देन इट्स ओके, इट्स 0. अगर 3 जीरोस होगी, 4 जीरोस होगी, इट्स ओके, एट दैट टाइम विल बी इक्वल टू 0. बट इट इज़ नाउ इनफाइनाइट. It's how it's equal to 0. So this is situations like this actually it's like 0 into infinity है ना. लग रहा है ना ऐसे कि 0 को हम infinite times add कर रहे हैं, 0 plus 0. It's like this. But how it's equal to 0? देखिए सीरीज जो है ना, सीरीज का सम, सपोज आपके पास सीरीज एक्स एन है, एन रनस फ्रॉम 1 to infinity. अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है, सपोज इसका सम एक्स के बराबर है, इसका मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन? देखिए जो आप लिख रहे हो ना, ये सारी एक्चुअली नोटेशंस है, ये सारी नोटेशंस है, और इन नोटेशंस का कुछ मतलब होता है, कुछ मीनिंग होता है इनका. जैसे मैं लिखूंगा लिमिट से एक्स अप्रोच टू 0 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5. सी दिस लिमिट इज इक्वल टू 5. तो ये सिर्फ नोटेशन है, तो इसका कुछ मतलब है. लिमिट इक्वल टू 5 का मतलब क्या है? दैट यू नो, इट इज एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन थ्रू से आ रहा है ये. तो इसकी डेफिनेशन है, इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन है कि लिमिट 5 के बराबर है. ये पहले हमें कैलकुलेट करना होता है. तो इसी तरह से ये सीरीज x के बराबर है, ये सीरीज x, इसका मतलब क्या है? सीरीज का सम x के बराबर, व्हाट डज इट मीन? Means this series converges to 0. सीरीज नहीं, सीरीज कन्वर्ज टू x मैंने यहाँ लिख दिया. हाँ, Secants of partial sums. okay, great. Sequence of partial sums. Actually we are defining this s1 equal to x1, s2 equal to x2, x1 plus x2, sorry. And in general we define Sn, which is equal to x1 plus x2 plus x. So this is now sequence. Now this limit of sequence, this is actually equal to x, jx के बराबर है. तो यही एक्चुअली सम है, यही एक्चुअली इनफिनाइट सीरीज है. दिस इज एक्चुअली सीरीज x n रन्स फ्रॉम 1 to infinity which is equal to x. तो एक्चुअली ये जो सीरीज है ना, इट्स एक्चुअली लिमिट ऑफ सर्टेन सीक्वेंस. और वो सीक्वेंस क्या है? वो सीक्वेंस है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स. अब देखिए हमारी, सर इसका यस, इसका मेजर क्या होगा सर? ये 0 के बराबर हमने कहा ना, ये सीरीज कन्वर्जेस टू फॉर एग्जांपल 0. इसका मेजर क्या होगा सर? फिर हम इसका क्या होगा सर? मेजर हमने कहा ना, मेजर ऑफ एम्प्टी सेट इज इक्वल टू 0. हाँ हाँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये 0 के बराबर कन्वर्ज हो रहा है 0 की तरफ. तो इसका मेजर हम इस सीरीज का मेजर कैसे? इस सीरीज का मेजर हमें आपको नहीं निकालना है. मेजर तो किसी सेट का आपको निकालना होता है, वो सेट किसी एक्स का सबसेट होता है. मेजर किसी सीरीज का नहीं होता है. ओके, मेजर हमने किसी सेट का निकालना, एक्चुअली यही मेजर ही है. 0 प्लस 0 प्लस ये उस सम का मेजर, मतलब वो जो सम आपने लिया ना, म्यू ऑफ A1, इट्स एक्चुअली मेजर ऑफ A1 है ना, प्लस मेजर ऑफ A2 प्लस मेजर ऑफ A3 है ना. ये मेजर ऑफ A1 है, ये मेजर ऑफ A2 है. इट्स लाइक दिस. So now my question is here this. Now what is for this series? आपके पास अब ये सीरीज है, मैं नेक्स्ट पेज पर आ जाऊँ. आपके पास ये सीरीज है 0 प्लस 0 प्लस 1. अब इसका जो, इसकी जो पार्शियल सीक्वेंस होगी वो क्या होगी? S1 किसके बराबर होगा? What's S1? 0. Okay, 0. What's S2? That is also 0. It's also. In general, what's Sn? Sum of first n terms. 0. 0. So actually this is a constant sequence which each term equal to 0. So this sequence is Sn, it's actually a 0 sequence. 0. So what's its limit then? What's the limit of constant sequence?